ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੇਮ ਲਹਿਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਤਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਔਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਈਟਨਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਟੂਰ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਥੁਨ ਮੰਡਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਰੂਬਰੂ। ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਚਮਤਕਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਮਿਥੁਨ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਚੱਲੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਜੀ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ? ਸਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮੈਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪੋਸਟਿੰਗ ਫਾਦਰ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਸ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। 550ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਰ 'ਚ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ UK ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਿਸਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਮਾਲ ਰਾਈਟਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੇਰੀ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵ ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੀ ਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਇਨਫੈਕਟ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਸੀਗੇ।
नाल एक नोमैड होने के नाते, ट्रैवलर होने के नाते एक हॉबी भी है। जिंदगी भर हिमाचल ठंडी जगहों पे गए हैं, अपनी मर्जी की फन करने के लिए गए हैं, तो क्यों ना मैं इस बार एक एजुकेशनलिस्ट एक की तरह एक एजुकेशन टूर करूं। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया सर कि उन्हें मैं और करीब से समझूं, उन जगहों को देखूं जहां वो गए हैं, जहां बैठे हैं, जिस माहौल से गुजरे हैं, वो सारी चीजें देखना चाहता हूं इसलिए। और ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? सर गुरु नानक देव जी ने जो पहली उदासी की थी 1500 AD से 1500 AD से लेकर 1506 में AD तक की थी, करीबन 6 साल। गुरु नानक देव जी की एज किताबी जो मैं पढ़ी है वो 31 ईयर टू 37 ईयर के बीच में 6 साल के करीब उन्होंने पहली उदासी की। ये उदासी बहुत लंबी है और मैं जे इनू बाइक ते रूट ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 9000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 9000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ 50 ਡੇਜ਼ 45 ਟੂ 50 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 45 ਟੂ 50 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਰ। और कितों शुरुआत करनी हैगी है जी? सर ये बठिंडा तो मैं सुल्तानपुर लोधी जाऊंगा सर। सुल्तानपुर लोधी से ये यात्रा शुरू होगी। बीच में पाकिस्तान का करतारपुर शहर भी आता है और उसके बाद दिल्ली होते हुए हरिद्वार, दिल्ली होते हुए हरिद्वार, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नानक मता होते हुए पटना, पटना से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से असम, असम से ढाका, ढाका से जगन्नाथपुरी और जगन्नाथपुरी से उड़ीसा होते हुए वापस दिल्ली के रास्ते से, पानीपत दिल्ली के रास्ते से वापसी, बनारस एंड ये सारी जगह भी उसमें आते वक्त कवर करने का प्लान किया। ओके, तो जैसे जैसे मतलब वो गए थे गुरु नानक देव जी, आप वैसे वैसे जाएंगे या मतलब? सर बिल्कुल मैंने वैसे ही कवर किया है क्योंकि मैंने किताबों में कुछ जगह मिसिंग है। जैसे किसी किताब में पटना टू मतलब कोई बीच की जगह मिसिंग है तो किसी किताब में वो जगह मेंशन है, तो मैंने उन किताबों को सारी किताब जगहों को मर्ज करके एक रूट प्लान किया है। हालांकि वो रूट उन्हीं एक रास्ते से ही गुजर के जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से मतलब पानीपत, दिल्ली, फिर हरिद्वार और हरिद्वार से फिर दिल्ली और दिल्ली से अगला रूट। तो मैंने भी कोशिश की है कि मैं उन सारे रूट को वैसे ही कवर करूं ताकि मैं जान सकूं कि हरिद्वार का जो जल देने वाली कहानी है और खेतों को पानी देने वाली कहानी के बाद अगली कहानी क्या आती है, वो सारा कुछ समझने के लिए मैं उसी रूट को फॉलो कर रहा हूँ सर। और इसके पीछे कारण क्या है कि मतलब जैसे आपने उनके बारे में जान तो लिया, आपने किताबें पढ़ ली उनके बारे में, तो उनके सेम जो उदासी कर एक जो भी उदासी है जी आज के समय की मॉडर्न उदासी है, मॉडर्न उदासी है, तो इसके पीछे जाने का कारण? इसके पीछे जाने का कारण है सर पेंटिंग। एज ए आर्टिस्ट होने के कारण मैं कभी भी इमेजिनेशन से पेंटिंग बनाने को काफी नहीं मानता। जैसे कि मैंने जब गुरु नानक देव जी की जितनी भी पेंटिंग्स देखता हूँ उनमें गुरु नानक जी काफी एज्ड हैं, पर मैंने जैसे ही आपको बताया कि ये उदासी 31 की एज पे उन्होंने शुरू की थी। आई एम इन नाउ 38 की एज पे हूँ सर, और मैं सोच के ही मुझे कि एक शख्स 31 की एज में इतनी लंबी लंबी उदासियां कर रहे हैं, तो मुझे था कि जब मैं पेंटिंग बनाऊं तो मैं उन चीज़ों को समझूं और उन बारीकों को अपनी पेंटिंग में डालूं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है आर्टिस्टों की कि वो मैक्सिमम नेट से पेंटिंग करते हैं, नेट की मदद से, या फिर किसी की पेंटिंग से मॉडर्न उठाकर पेंटिंग कर रहे हैं। वो फीलिंग्स इनकम्प्लीट रहती हैं जो एक आर्टिस्ट की फीलिंग है। मेरी पेंटिंग्स अगर आप कभी भी देखें तो वो मेरी अपनी पेंटिंग है जो मैं फील करता हूँ। मैं अगर रेड कलर भी लगा रहा हूँ तो उसके पीछे एक मैं लगाता नहीं हूँ, मैं उठा के रखता हूँ, एक कलर के ऊपर दूसरे कलर को रखता हूँ। मैं कभी कैनवस पे कलर लगाता नहीं हूँ। तो मुझे अगर गुरु नानक देव जी का कोई पोर्ट्रेट बनाना है तो उसके लिए मैं उन सारी मुश्किलों को देखना चाहता हूँ, उसके बाद जो मेरे मन से पोर्ट्रेट निकलेगा मैं उसे पेश करना चाहूंगा। मेन कारण फील करेंगे, राइट। मैं बिना फील किए मुझसे काम हो नहीं पाएगा सर। अच्छा, तो कितना अध्ययन किया आपने? गुरु नानक देव जी की 4 जन्म साखियां हैं सर जो कि बहुत फेमस है। चारों जन्म साखियों को मैंने पढ़ा है।
इसके लिए मेरी मदद मिस्टर गुरप्रीत आर्टिस्ट बठिंडा और उनकी सिस्टर जो यूके में है तशंदर कौर, साथ में मेरे स्कूल के टीचर हैं मिस्टर रंजना शर्मा और बहुत सारे फ्रेंड हैं, रमदिंदर सिंह, ये सभी मुझे गाइड कर रहे हैं। क्योंकि एज ए पंजाबी बैकग्राउंड ना होने करके शब्दों को लेकर काफ़ी गलत समझ भी हो सकती है, तो मैं उनसे समझता हूँ। और उसके बाद काफ़ी सारी किताबें मेरे पास अभी कलेक्ट हुई है। जैसे आज ही ये किताब मुझे मिली है, मुझे किसी ने पढ़ने के लिए दी है कुछ वक्त के लिए, तो रखने के लिए पढ़ने के लिए भी शुक्रिया। क्योंकि अब जैसे ये किताब मेरे पास नहीं थी राइटर की, तो अब फाइनली अब मैं इन्हें भी पढ़ूंगा। तो मैं सारी, जब तक मैं किताबें नहीं पढ़ सकता तब तक मैं समझ को दिखा भी नहीं सकता कि असल में क्या है। क्योंकि ऑब्वियसली आप जब तक आसपास के लोग जिन्होंने उन्हें समझा है उन्हें भी पढ़ना जरूरी था। तो अब मैं पढ़ रहा हूँ, कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ, और उन गुरुद्वारों में भी जाके पढ़ूंगा। वहां से अगर कुछ मिल सके तो मैं जरूर लेकर आऊंगा बठिंडा वापस। तो स्टडी तो मेरी तरफ से मुझे लगता है कि शुरू हो चुकी है, और बिना स्टडी के मैं जाके कहाँ, मतलब बहुत मुश्किल था बिना स्टडी के जाना, तो ऑब्वियसली स्टडी तो की है सर। और तैयारी कैसी है जाने के लिए? सर तैयारी ऐसी है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। और इतने सारे टूर मैंने बाइकिंग ग्रुप बठिंडा के साथ किया है, प्लान किया है। और इसके अलावा ट्रैकर होने के नाते मैं ज़्यादा सामान नहीं लेके जा रहा, मैं ज़्यादा जितने सामान लेके जा रहा हूँ उतनी किताबें लेके जा रहा हूँ। क्योंकि मेरा एक और प्लान ये बना है कि गुरु नानक देव जी की मैं हिंदी राइटिंग में किताबें 100 बुक्स मैं डोनेट करने के मूड से जा रहा हूँ। और ये बुक्स मैं उन लोगों को डोनेट करना चाहूँगा जो मीन्स ट्रैवलर हो या कोई, मतलब इट्स नॉट कि कोई कंफर्टेबल शख्स को मैं नहीं करना चाहूँगा। मैं जो ट्रैवलर है या जो मुझे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगते हैं, जो लाइफ में कुछ खोज रहे हैं, जो अगर मुझे ऐसा फील होता है तो मैं उन लोगों को वो किताबें डोनेट करने चाहूँगा। तो मेरी जो तैयारी है वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ है, और बुक्स ज़्यादा है मेरे पास, कपड़े कम है। और आपने ठहरने का क्या सोचा है कि ज़्यादातर तो आपको मेरे हिसाब से गुरुद्वारा साहब मिल जाएंगे ठहरने के लिए? हाँ, मैं वैसे अब तक बहुत कंफर्टेबल लाइफ में रहा हूँ, बड़ी लग्जरी लाइफ में मैं रहा हूँ। तो इस उदासी को करने के लिए मैंने स्पेशली ये डिसीजन लिया अपने आप के साथ कि मैं गुरुद्वारे में ही रहूँ। मैं और होटल में नहीं रहने, मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं गुरुद्वारे में ही रहूँ, या कहीं कंफर्टेबल जगह के लिए मैं वेट ना करूं, मैं सिर्फ गुरुद्वारे में ही रहना चाहता हूं। और टेंट वगैरह भी साथ लिया? बिल्कुल सर। और बाय चांस किसी वेदर कंडीशन के कारण या किसी कुछ भी सडनली आई हुई कोई प्रॉब्लम के कारण अगर रुकना पड़े तो मैं टेंट लगा सकता हूँ, टेंट में रह सकता हूँ। तो उसके लिए मैं पूरी तैयारी है, और अगर मजबूरी हुई तो रहूंगा भी सर। आप गुरु नानक देव जी की उदासियों पर जा रहे हैं, तो गुरु नानक देव जी के बारे में 2 शब्दों में क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे, आप कैसे प्रभावित हैं इनसे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये कमाल है, और वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं इनकी तारीफ के लिए। जो इन्होंने किया है, जो इन्होंने लिखा है, जो इनके विचार है, अगर आप वो पढ़ ले, क्योंकि लोग सिर्फ सुनते हैं कि गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी, लेकिन अगर वो पढ़े तो यकीन मानिए इस सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि वो उनके फेवरेट शख्स ना बन जाए। और आप मन के अंदर खुद आप फील करेंगे कि आप भी गुरु नानक हैं। उनके जैसी थॉट देखने का नजरिया डिफरेंट है, कमाल है। और मुझे लगता है कि लाइफ में आपको गुरु नानक देव जी को पढ़ना चाहिए, सिर्फ एक ऊपरी दिखावा नहीं। उनके सारे जो श्लोक्स है उन्हें पढ़ना चाहिए, और मतलब एब्सोल्यूट कोई वर्ड ही नहीं है सर। ये एक वक्त है जब जिसकी तारीफ हम क्या कर सकते हैं, कोई तारीफ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो अलग है, वो शख्स इतने पावरफुल है, इतने सुंदर है कि नहीं किया जा सकता। इस कमाल ही है गुरु नानक देव जी। और मुझे तो मतलब उनका एक फेवरेट श्लोक है, दुख दारू सुख रोग, और वो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने शरीर में कहीं लिखवाऊं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर क्या चीज़ है, इट्स ब्यूटीफुल, शब्द ही नहीं है सर उनके लिए कहने के लिए। जी दोस्तों, ਇਹ ਨੇ ਮਿਥੁਨ ਮੰਡਲ ਜੋ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ, ਕਿਹੜਾ YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ Insta ਤੇ?
पिछले 4 सालों से मैंने सोशल मीडिया को छोड़ा हुआ था, लेकिन कुछ फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट में, जिनमें सर भी हैं, इन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है इस उदासी को रिकॉर्ड करना और मेंटेन। तो इसके लिए हमने एक चैनल बनाया, यस आई एम नोमैड। नोमैड शब्द का मतलब है घुमक्कड़, आवारा, घूमने वाला शख्स। तो हाँ, मैं एक घूमने वाला शख्स हूँ, ट्रैवलर हूँ, और इसका सब टाइटल है हर भटका हुआ मुसाफिर गुमराह नहीं। यस आई एम नोमैड, हर भटका हुआ मुसाफिर गुमराह नहीं। ये आज ही हमने यूट्यूब चैनल बनाया है। तो अगर आप लोगों की प्यार हो और कुछ सजेशन हो मुझे कि मैं इस ट्रैवलिंग को कैसे कंप्लीट करूं, तो प्लीज़ ज़रूर उस चैनल में आकर मुझे ज़रूर बताएं, मुझे खुशी होगी इस चीज़ की। ਜੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੀ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਘੁਮੱਕੜ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਘੁਮੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਬੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੁਮੱਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਿਓ। ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਭਣ ਚੱਲਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਤਰਾ ਮੰਗਲਮय ਹੋ। शुक्रिया सर, Thank you. थैंक यू।